Hello dear students, today we are going to understand the topic pronoun. So as you all know what pronouns are. Pronoun is a word which is used in place of noun. So this way we can write definition of pronoun, a word used in place of noun. For example, he is a doctor. Is in this sentence he is pronoun. They help us. In this sentence they and us. Both words are pronoun. We love all. In this sentence we and all. These both words are pronoun. So students, there are 10 types of pronoun. One by one we'll discuss this pronoun. So the first one is personal pronoun. So personal pronouns are those which we use in place of common and proper noun. So these are also categorized in like this, like first person, I, we, us, me, mine, our, ours and my. Second person, you, your, yours, दो, दी, दाई. स्टूडेंट्स जो लास्ट के 3 वर्ड्स हैं दो, थी एंड दाई, ये आउटडेटेड वर्ड्स हैं, ये पहले यूज़ होते थे. दो का मतलब यू, दी का मतलब भी यू होता है एंड धाई का मतलब यूअर. ओके. सो थर्ड पर्सन, ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, दे, दियर, दैम, दियर्स, इट, इट्स. सो पर्सनल प्रोनाउन को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. सो ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन था जो हम यूज़ करते हैं कॉमन नाउन्स के लिए और प्रॉपर नाउन्स के लिए. So students, second pronoun is demonstrative pronoun. So these are the pronouns which we use to point out objects or point out things. And in this we use this, that, these, those and such. For example, this is my bag. That book is yours. Those trees are theirs. So this kind of pronouns which we use for pointing out are known as demonstrative pronouns. So third one is distributive pronouns, and these pronouns refer to things one at a time. So these pronouns are used for the things and one at a time. So in these pronouns we use either, each, none, neither. So let us see examples. Either can solve it. Each of you can do it. None of them have done that. Neither can go out. So these kind of pronoun we use for things one at a time, and these kind of pronouns are called distributive pronouns. Dear students, fourth one is interrogative pronouns. And first of all, I would like to say we should correctly pronounce this word. It is not interrogative, it is interrogative. So interrogative pronouns are used to ask questions. वो pronouns जिनको हम question पूछने के लिए यूज़ करेंगे, उन pronouns को हम कहेंगे interrogative pronouns. So this way, pronouns which ask questions are known as interrogative pronoun. For example, what is your mother? मतलब आपकी मम्मी क्या जॉब करती है, आपकी मम्मी क्या कार्य करती है. Who is your teacher? तुम्हारी टीचर कौन है. Where does he go? वो कहाँ जाता है. So these are the pronouns which are used to ask questions. इन pronouns को हम use करते हैं students question पूछने के लिए, इसीलिए हम इन pronouns को कहते हैं interrogative pronouns. So students, fifth one is reflexive pronouns. ये वो pronouns होते हैं जो हमें ये बताता है कि subject ने क्या work किया. Okay, so reflexive pronouns show that the action done by the subject returns to it. कि जो भी काम उस subject ने किया है उसका प्रभाव उस subject के ऊपर पड़ता है. तो इस प्रकार के जो pronouns होते हैं इन्हें हम reflexive pronouns कहते हैं.
So reflexive pronoun we can write like this also. The compound personal pronoun which reflect subject. ये हम दूसरा डेफिनेशन इसकी दे रहे हैं. The compound personal pronoun which reflect the subject. हम इस प्रकार से भी डेफिनेशन लिख सकते हैं. इसमें जो प्रोनाउंस होते हैं उसमें हम SLEF सेल्फ या SELVES सेल्स वर्ड यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही केम हिमसेल्फ, वह अपने आप आया. वी डिड इट आवरसेल्व्स, हमने ये कार्य अपने आप किया. शी ट्राइड इट हरसेल्फ, उसने इस काम को करने की खुद ही कोशिश की. तो आप देखिए, जैसे ही से हिमसेल्फ बना है, वी से आवरसेल्व्स बना है, शी से हर सेल्फ बना है. तो इसी प्रकार हम इट से इट सेल्फ बनाएंगे, दे से देम सेल्फ बनाएंगे, यू से यूअर सेल्फ बनाएंगे, वी से आवर सेल्फ बनाएंगे, इट से इट सेल्फ बनाएंगे. लाइक दिस वी फॉर्म रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. Sixth one is relative pronouns. So relative pronouns introduce a clause to a noun or a pronoun preceding it. इसका मतलब रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो एक क्लॉज ऐड करता है, और जो वो क्लॉज होता है वो उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है जो उस क्लॉज के तुरंत बाद हो. हम थोड़े एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं. ये देखिए, रिलेटिव प्रोनाउंस दे इन्फॉर्म अबाउट नाउन बिफोर देम इन अ क्लॉज. दे इन्फॉर्म अबाउट नाउन या प्रोनाउन बिफोर देम इन ए क्लॉज. ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ये एक क्लॉज को कनेक्ट करते हैं, और उस क्लॉज से तुरंत पहले जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसके बारे में ये उस क्लॉज में बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. द बुक विच ही रीड्स इज़ माइन. अब यहाँ पे जो विच है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसके बाद कौन सा क्लॉज आया है, ही रीड्स इज़ माइन. तो ये जो क्लॉज है ही रीड्स इज़ माइन, ये किसके बारे में बता रहा है, ये बुक के बारे में बता रहा है, और ये बुक नाउन है. तो बुक नाउन के बारे में क्लॉज बता रहा है विच ही रीड्स इज़ माइन. सो इसी प्रकार हमने बताया था कि किसी नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद जो क्लॉज होगा और वो क्लॉज उस नाउन के बारे में डिफाइन करेगा. एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, लाइक दिस. द बॉय हु हेल्प्ड मी इज़ राम. अब यहाँ पे हु हेल्प्ड मी इज़ राम ये एक क्लॉज है, हमने ये कनेक्ट किया है हु की मदद से, और जो ये क्लॉज है ये किसके बारे में हमें बता रहा है, एक बॉय के बारे में. तो इस प्रकार ये होता है. कुछ अगर हमें और एग्जांपल देने हो तो देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं. दिस इज़ द बुक विच my brother read. This is the watch which my father gifted. That is a man who helped me yesterday. She is a lady whose son stole my watch. So these kind of sentences we use relative pronoun. So next one is emphatic pronouns. So these pronouns emphasize the subject by whom the action is done. Emphatic pronouns वो pronouns होते हैं जो subject को highlight करते हैं, जो subject को emphasize करते हैं, वो subject जो कोई कार्य करता है. emphatic pronoun में भी हमारा जो formation है वो हमारा reflexive pronoun के तरह रहता है. बट इसमें डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, कि हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेंटेंस के एंड में आता है वर्ड, और हमारे एम्फेटिक प्रोनाउंस में सब्जेक्ट के बाद हमारा ये वर्ड आएगा. हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. ये देखिए, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहिए या एम्फेटिक प्रोनाउन कहिए, एक ही बात है. द कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन विच एम्फसाइज things or objects. Okay, so now what we see, he himself bought it. अब जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए ऊपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और नीचे हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है. दोनों में डिफरेंस क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो हमारा ये वर्ड होता है ये सेंटेंस के एंड में होता है, हिमसेल्फ देखिए, और एम्फेटिक प्रोनाउन में ये हमारे सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है.
एम्फेटिक प्रोनाउन हमारा हाईलाइट करता है ऑब्जेक्ट्स को। ही हिमसेल्फ बॉट इट, वो अपने आप खरीद के लेके आया था। एक नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा सेंटेंस है वी आवर सेल्व्स डिड इट, हमने खुद ही यह किया था। अब आप इसका पोजीशन देखो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आवर सेल्व्स लास्ट में आया है और एम्फेटिक प्रोनाउन में जो ये वर्ड है ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया है। तो यही डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये जो वर्ड होता है ये सेंटेंस के एंड में आता है और एम्फेटिक प्रोनाउन में ये जो वर्ड होता है जो सब्जेक्ट को एम्फसाइज कर रहा है ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। सो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और हमें एम्फेटिक या एम्फसाइजिंग प्रोनाउन के बीच में कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट pronoun is possessive pronouns and these pronouns express या show ownership। ऐसे pronouns जो ownership को शो करते हैं उसको हम possessive pronouns कहेंगे। ownership क्या होता है या possession क्या होता है, वो pronoun हमें ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ किसकी है, वो ओनरशिप को शो करेंगे। ऐसे प्रोनाउंस को हम कहते हैं possessive pronouns। कुछ एग्जाम्पल्स करके समझते हैं इसको। Possessive pronouns, pronouns used to show ownership। ऐसे pronouns जो हमें ओनरशिप को शो करते हैं। देखो एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, दिस बाइक इज़ माइन। अब ये बाइक किसकी है, ये बाइक मेरी है, तो ये ओनरशिप बता रहे हैं कि इस बाइक का ओनर कौन है। इस बाइक का ओनर कोई इंसान है जो अपने आप के लिए कह रहा है कि ये बाइक मेरी है। इस सेंटेंस में जो माइन है ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, दैट मोबाइल इज़ योर्स। वो मोबाइल आपका है, तुम्हारा है, तो मोबाइल की ओनरशिप बताई है और इसमें योर्स जो है ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है। लास्ट सेंटेंस देखो बच्चों, दीज बुक्स आर देयर्स। ये किताबें उनकी हैं, तो किताबों का ओनरशिप बताया है कि वो किसकी हैं। So next pronoun is indefinite pronouns. So pronoun used for persons or things in a general. Okay. So in a general way जब हम pronouns को use करेंगे things के लिए और persons के लिए या things के लिए एक general way में, और वो जो noun या pronoun होते हैं वो definite नहीं है, वो indefinite है, मतलब वो कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता वो कौन है। तो उस सेंस में हम जो प्रोनाउंस यूज़ करते हैं हम उसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इंडेफिनिट का मतलब होता है जो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है जो। एग्जाम्पल से समझते हैं, मैनी केम हियर। अभी जो सेंटेंस है मैनी, ये प्रोनाउन है। मैनी केम हियर, यहाँ तो बहुत सारे आए, अब हमें क्या पता ये मैनी कौन है, ये मैनी में कितने लोग हैं, कौन लोग हैं, हमें नहीं पता, इसीलिए इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऑल वर हंग्री, सभी भूखे थे। हेयर ऑल इज़ ऑल्सो प्रोनाउन, पर अब हमें नहीं पता कि ऑल में कौन है, कितने हैं। तो इस प्रकार जो प्रोनाउन होते हैं जिसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, तो हम यूज़ करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। एक और सेंटेंस देखते हैं बच्चों, सम हेल्प्ड देम, कुछ ने उनकी मदद करी। अब जो यहाँ पे ये सम है ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि हमें नहीं पता ये सम में कौन है, ये कुछ जो कुछ हैं ये कौन है, इसीलिए इस प्रकार के जो प्रोनाउन होते हैं इनको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। द लास्ट वन इज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये ऑलमोस्ट बुक्स में मिलता भी नहीं है स्टूडेंट्स, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हम दो ही हमारे पास प्रोनाउन होते हैं और वो भी पेयर में होते हैं। एक होता है ईच अदर, एक होता है वन अनदर। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ये दो ही एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर हम तब यूज़ करते हैं जब दो लोगों की बात हो, और वन अनदर हम तब यूज़ करते हैं जब बहुत सारे लोगों की बात हो। कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं तो आप लोगों को ईजीली समझ में आएगा। ईच अदर इज़ यूज फॉर टू पर्सन एज आई हैव टोल्ड यू, वन अनदर इज़ यूज फॉर मैनी। मैं आपको एग्जाम्पल्स ओरली बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर, राम और श्याम एक दूसरे की मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल फार्मर्स आर हेल्पिंग वन अनदर नाउअडेज, आजकल सभी किसान एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। गीता एंड सीता ईच अदर शेयर फूड, गीता और सीता आपस में फूड शेयर करते हैं।
ऑल वुमेन हेल्प वन अनदर या लाइक वन अनदर। जितनी औरतें होती हैं वो एक दूसरे को लाइक करती हैं, वैसे ऐसा होता नहीं है, वुमेन्स ऑलमोस्ट क्रिटिसाइज वन अनदर, बट मैं आपको वन अनदर जब बहुत सारे लोगों के बीच में काम हो रहा तो बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिशियंस क्रिटिसाइज वन अनदर, ये जो राजनीतिक होते हैं, राजनेता होते हैं, ये एक दूसरे की बुराई करते हैं। तो इस प्रकार हम इन प्रोनाउंस को यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप जो आज मैंने 10 प्रोनाउंस आपको इतने डिटेल में करवाए हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने एक एग्जाम्पल्स भी देने की कोशिश की है, आप लोग इनको समझो, अपने पास नोट्स बनाओ, इनकी डेफिनेशन लिखिए और फिर डेफिनेशंस को लर्न भी करो और प्रैक्टिस भी कीजिए काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस की हेल्प से। थैंक यू।